الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو فہم زبان شارٹ لیکچر سیریز بائی نور ہدایت. سبق نمبر 2، فعل کی تصریف، کانجوگیشن ٹیبل. ایک ہی لفظ اور اس کی 14 مختلف شکلیں. عربی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ آج ہم بہت آسان انداز میں سمجھیں گے کہ عربی میں فعل کیسے بنتا ہے اور اسے مختلف صیغوں میں کیسے بدلا جاتا ہے. اگر آپ کو عربی کے صیغے مشکل لگتے ہیں تو آج کا سبق آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گا، کیونکہ ہم اسے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے اور آخر تک آپ خود کسی بھی مادے کی مکمل گردان بنا سکیں گے انشاءاللہ. فعل کی ساخت اور تصریف، ورب فارمیشن اینڈ کانجوگیشن. عربی میں فعل کن چیزوں سے بنتا ہے اور اسے مختلف صیغوں میں کیسے بدلا جاتا ہے، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. عربی گرامر میں کسی بھی فعل کو بنانے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ضروری ہیں: مادہ، روٹ ورڈ یا روٹ لیٹر، وزن، پیٹرن، صیغہ، ورب فارم. مادہ، روٹ ورڈ یا روٹ لیٹر. مادہ وہ اصل حروف ہوتے ہیں جن سے فعل بنتا ہے. عربی میں زیادہ تر مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک سٹینڈرڈ روٹ لیٹر سیکھے تھے، فا عین لا. وزن، پیٹرن، ڈائی، مولڈ. وزن ایک سانچے کی طرح ہوتا ہے. ہم مادہ یعنی روٹ لیٹرز کو اس میں ڈال کر مختلف الفاظ بناتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک وزن دیکھا تھا فاعلن، اور ہم نے اس میں روٹ لیٹر کاف تا با ڈالے تھے اور ہمارا صیغہ بنا تھا کاتبن، لکھنے والا. اسی طرح ہم نے ایک اور وزن دیکھا تھا مفعولن، اور جب ہم نے کاف تا با سے مفعولن کے پیٹرن پر صیغہ بنایا تھا تو وہ بنا تھا مکتوبن، لکھا ہوا یا جسے لکھا جائے. صیغہ، ورب فارم. صیغہ وہ شکل ہے جو فعل، ضمیر، تعداد اور جنس کے لحاظ سے اختیار کرتا ہے. عربی میں ایک فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں. عربی گرامر میں ضمائر کی 3 اقسام ہیں، اسے 3 طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے: غائب 3rd پرسن، حاضر 2nd پرسن، متکلم 1st پرسن. اور انہی کے مطابق فعل کی شکلیں بدلتی ہیں. ساتھ ہی آپ کے سامنے ضمائر کا حالت رفع میں ایک چارٹ شیئر کیا گیا ہے جو ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا. یہ چارٹ آپ کے ساتھ اس پرپس کے لیے شیئر کیا گیا ہے کہ جب ہم گردان کی کنسٹرکشن کریں گے تو وہاں یہ آپ کو ہیلپ فل رہے گا. تو یہ حالت رفع کے ضمائر کا چارٹ آپ ایک بار ریوائز کر لیجیے گا. فعل کو مختلف صیغوں میں بدلنے کو عربی میں تصریف اور اردو میں گردان کہتے ہیں. اگر میں کہتی ہوں وہ گیا، he went، تو یہاں وہ ضمیر ہے، گیا کام ہے جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں he went تو یہاں he جو ہے پروناؤن ہے اور went verb ہے. اگر اسی بات کو مجھے عربی میں کہنا ہے تو اس کے لیے وہاں روٹ لیٹر موجود ہیں، دال، ہا، با.
जाना। एक बात आपको याद रखनी है कि अरबी ग्रामर में जो रूट लेटर्स हैं, उनके जो मीनिंग्स लिखे जाते हैं वो यूं मस्दरी माना में लिखे जाते हैं, जैसे खाना, पीना, बैठना और ये जाना। तो यहाँ देखिए कि हमें यहाँ भी 3 ही रूट लेटर मिल रहे हैं, दाल, हा, बा। इन्हीं रूट लेटर की मदद से हम फेल बनाएंगे और उस फेल से हम पूरी एक गर्दान की कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे कि एक गर्दान को कैसे बनाया जाता है और इस रूट लेटर से मुख्तलिफ सीगे कैसे बनेंगे। तो रूट लेटर हम वही लेंगे, दाल, हा, बा। लेकिन गर्दान की कंस्ट्रक्शन से पहले हमें एक चीज को समझना है कि जुमला फेलिया क्या है। फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया कहलाता है और इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, फेल प्लस फाइल। यानी जुमला फेलिया में फेल और फाइल होगा तो आपका जुमला फेलिया कंस्ट्रक्ट होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है, फाइल हमेशा मरफू होता है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, फेल माजी की गर्दान बनाते हैं। रूट लेटर हम वही लेंगे, गाल, हा, बा, जाना। इसके लिए गर्दान बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक चार्ट को बनाना है, जैसे हमने ज़मायर का चार्ट बनाया था। गायब के लिए अलग और उसमें फिर हम जो है जेंडर का लिहाज रखेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस। हाजिर के इसी तरह बनाएंगे कॉलम्स और मुतकल्लिम के भी, और फिर अदद के लिहाज से भी डिवाइड करेंगे। रूट लेटर है दाल, हा, बा। अब आपके सामने ये रूट लेटर आ गए, बारी आ गई इन पर हरकत लगाने की, क्योंकि इन पर हरकत नहीं लगती। अब दाल, हा, बा को अगर हम स्टैंडर्ड रूट लेटर के हिसाब से देखते हैं तो दाल हमारा फा कलमा है, हा हमारा आइन कलमा है और बा हमारा लाम कलमा है। तो याद रखें कि फेल माजी में लाम कलमा जो है जबर के साथ होता है या फतहा के साथ मिलेगा। ठीक है, फिर पीछे हमारे पास बचे फा और आइन कलमा। अब यहाँ पर याद रखें, हम जो फेल माजी की गर्दान बनाने जा रहे हैं वो एक्टिव वॉइस की है, तो फा कलमा एक्टिव वॉइस में जबर के साथ होता है। अब हमारी फा और लाम कलमे की हरकत सेट हो गई, पीछे बचा आइन कलमा। तो याद रखें कि आइन कलमा जो है फेल का वजन कहलाता है। ठीक है, और ये चेंज होती रहती है हरकत। तो यहाँ जो हमारे पास रूट लेटर है दाल, हा, बा, इधर आइन कलमे पर हमें जबर मिलती है, तो ये हमारा हो जाएगा दहाबा। तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? तो मैं कहती हूँ वो गया। अब आप कहेंगे कि मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, वो गया। वो के लिए तो यहाँ पर कोई भी हर्फ मौजूद नहीं, कोई लफ्ज मौजूद नहीं। तो यहाँ अगर मैं हुआ ले आती हूँ, हुआ ज़हाबा, तो वो तो जुमला इस्मिया बन जाएगा क्योंकि इसम से स्टार्ट हो रहा है। जबकि हम पढ़ रहे हैं, जबकि हम जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं, तो जो हुआ की ज़मीर है वो इस फेल के अंदर मौजूद है फाइल की सूरत में। ठीक है, तो हम कहेंगे वो गया। तो आपने याद रखना है कि जुमला फेलिया जो है फाइल के बगैर इनकम्प्लीट है। तो फेल माजी की गर्दान का जो पहला सीगा है, इसमें जो फाइल जमीर है वो इसके अंदर मुस्ततिर है, छुपी हुई है। ठीक है, अब यहाँ हमारा पहला सीगा तैयार हो गया,
और पहले सीगे का मतलब है कि पहला जुमला फेलिया आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ऐसे कि यहाँ फेल भी मौजूद है और इसमें फाइल भी ज़मीर की सूरत में मौजूद है। ठीक है, वो गया। अब हम बात करते हैं मुसन्ना की। तो जब हम मुसन्ना की बात करते हैं तो हम कहेंगे वो दोनों गए, राइट। तो हम जाना के लिए दाल हा बा ही लेकर आएंगे, इसी तरह जहा बा लेकर आएंगे। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा कि वाहिद और मुसन्ना में हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये मुसन्ना के लिए आया है। तो मुसन्ना के लिए, डुअल के लिए जो जमीर इस्तेमाल की जाती है वो है हुमा। ठीक है, और हुमा का अलिफ जो है हम इस जहाबा के साथ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा जहाबा, वो दोनों गए। फिर इसी तरह जब हम जमा की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो जमा के लिए अरब ने क्या किया कि जैसे मुसन्ना के लिए यहाँ पर हुमा का अलिफ लेकर आए थे, तो जमा में क्योंकि हम जमीर आएगी, तो वहां हम जमीर को मेंशन करने के लिए उन्होंने वाव और अलिफ का इजाफा किया। अलिफ का इजाफा हुआ तो फिर उन्होंने बा कलमे की जो जबर थी उसको पेश से बदल दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो ये हो गया ज़हाबू, वो गए। तो हमारे गायब के मुजक्कर के 3 सीगे तैयार हो गए, ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू। अब मोनस गायब की तरफ चलते हैं। हमें याद रखना है कि मोनस के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो है ता। तो हम उस ता का इस्तेमाल अब यहाँ करेंगे कि ज़हाबा के बाद हम उस ता को ले आएंगे, ठीक है, और उस पर अलामत सुकून लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ज़हाबत, यानी वो गई। अब इस जगह पर हमें हिया की जमीर जो है इसके अंदर फाइल की सूरत में मौजूद मिल रही है और वो मुस्ततिर है, हिडन है। जबकि अगर हम यहाँ मुसन्ना मुजक्कर में देखें तो जो जमीर है हुमा की वो यहाँ अलिफ की सूरत में मौजूद है, और जमा में जो हम की जमीर है वो वाव और अलिफ की सूरत में यहाँ इसके साथ अटैच हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही तादाद बदलती है तो अल्फाज में इजाफा होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो मुसन्ना में अलिफ का इजाफा हुआ और जमा में वाव और अलिफ। अब हमने वाहिद मोनस गायब का सीगा बना लिया ज़हाबत। ठीक है, तो जब हम इसके मुसन्ना के सीगे की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे कि मुसन्ना के लिए भी हुमा की जमीर आती है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम उसी हुमा का अलिफ इधर ज़हाबत के साथ लगा देंगे। अब क्योंकि अलिफ अपने से पीछे जबर की डिमांड करता है तो ये हो जाएगा ज़हाबता, वो दोनों गईं। और ये अलिफ हमें बता रहा है कि यहाँ हुमा जमीर फाइल है इसमें। अब हम जमा की तरफ चलते हैं। तो जमा मोनस का सीगा बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि हम यहाँ पर इस बात को सबसे पहले याद रखिए कि ये जो सीगा नंबर 6 है, ये यहाँ से गर्दान में एक ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर हमारा जो लाम कलमा बा है वो साकिन हो जाएगा और वो थ्रू आउट आखिरी सीगे तक साकिन रहेगा, तो ये हो जाएगा ज़हब। अब हमें जमा मोनस का सीगा बनाना है, तो जमा मोनस की जमीर है हुन्ना, तो उस हुन्ना का नून हम इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये बन जाएगा ज़हब ना, वो गईं या वो सब गईं। अब हम बात करते हैं हाजिर के सिगों की, सेकंड पर्सन की। तो पहले मुज़क्कर का बनाएंगे। सीगा बनाने से पहले हम देखेंगे कि हाजिर के ज़मायर कौन से हैं जो हमने पढ़े थे। वो थे अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, और फिर ये हमारे 6 सीगे थे। ठीक है, अगर आप इनको गौर से देखें तो देखिए यहाँ पर हमें इन सब में एक कॉमन चीज मिल रही है, और वो है यहाँ पे अन।
ठीक है, ये अन हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है सब में। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो अन है, इस अन को यहाँ पर हम लोग जो है इन सब के अन को जो है हटा देंगे। इन सब का जो ये अन है ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसका भी, अंतुम का भी, इन सब का अन हटा देंगे तो फिर हमारे पास पीछे क्या बचेगा उसको देखते हैं। अब हमारे पास जो जमायर में से बचा वो बचा ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना। राइट, तो अब हम इनको यूज करेंगे। जब हमने छठा सीगा बनाया था तो हमने कहा कि ये जो ज़हब है यहाँ से आखिर तक गर्दान इसी तरह चलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस ज़हब को आप यहाँ सब जगह पर कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी मैं फिलहाल आपके सामने जो है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे को बना रही हूँ। तो ज़हब को मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर जो ये ता ज़मीर थी इसको अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा ज़हबता, तुम गए। इसी तरह मुसन्ना के लिए ज़हब के साथ तुमा की ज़मीर लगा देंगे तो बन जाएगा ज़हब तुमा, तुम दोनों गए। जमा मुज़क्कर के लिए ज़हब के साथ तुम की ज़मीर अटैच करेंगे, ज़हब तुम गए या तुम सब गए। मुअन्नस हाजिर की तरफ जब हम चलते हैं तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ज़हब के साथ ताज़िर ती का इजाफा किया, ज़हब ती, तुम गई। मुसन्ना में ज़हब तुमा, तुम दोनों गईं। और जमा में ज़हब के साथ तुन्ना का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा ज़हब तुन्ना, तुम सब गईं। मुतकल्लिम के सीगे की तरफ चलते हैं। तो मुतकल्लिम का सीगा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए वाहिद मुअन्नस गायब से देखिए कि हमारे पास पहले था ज़हाबत, ता साकिन मिली, फिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर में ज़हबता, ता पर ज़बर मिल गई, और वाहिद मुअन्नस हाजिर में ज़हबती, ता पर ज़ेर मिली। तो मुतकल्लिम के सीगे के लिए जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यूज होगा उसके लिए हम ज़हबतू लिखेंगे, ता पर पेश ले आएंगे। ठीक है, ज़हबतू, मैं गई या मैं गया। अब बारी है मुसन्ना और जमा की। तो मुसन्ना और जमा मुतकल्लिम के सीगे एक ही सीगे के साथ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ जो हमने छठा सीगा बनाया था ज़हबना, इसी को कॉपी करके लिखेंगे और आखिर में एक अलिफ का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा ज़हबना। आपने ज़हबना और ज़हबना की अदायगी में फर्क रखना है। अब आपकी ये जो ज़हबना की ट्रांसलेशन क्या करेंगे, मुसन्ना की करेंगे तो हम कहेंगे हम दोनों गईं या हम दोनों गए, और जमा के लिए हम सब गए या हम सब गई। तो ये आपकी फेल माजी की जो कॉन्जुगेशन टेबल है वो रेडी है आपके सामने। ठीक है, 14 सीगे हैं, 14 जुमला फेलिया आपने कंस्ट्रक्ट किए इसमें। नोट करें कि मादा हर जगह सेम है। ठीक है, मादा हर जगह मौजूद है, लेकिन जो चेंजेस आई हैं, तब्दीली आई है, वो आखिर में आई है। ठीक है, मादा हर जगह मौजूद रहता है लेकिन तब्दीली सिर्फ आखिर में आती है। ठीक है, अगर आप पहले 6 सीगे अच्छी तरह समझ लेंगी तो बाकी गर्दान आपके लिए बनानी आसान हो जाएगी। और हाजिर के सीगे तो हमने बहुत आसानी से बना लिए थे। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और एक और बात, फ़िल माज़ी का जब भी सीगा आपके सामने आएगा तो आपने उसकी पहचान उसके आखिर के ये हर्फ से रखनी है। ठीक है, जो आखिर में आपको हर्फ मिलेगा उससे आपने पहचान रखनी है, क्योंकि तब्दीली आखिर में ही आपको नजर आ रही है, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट करके लिखा कि आपको पहचानने में आसानी हो जाए। एक बार फ्लो के साथ मैं आपके सामने इस कॉन्जुगेशन टेबल को पढ़ती हूँ। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। फिर माजी के औज़ान
patterns of the past tense verb. فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا، اور ان تینوں میں دیکھیے عین کلمے کی حرکت صرف تبدیل ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر مفید لگا ہے تو نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید آسان عربی سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔